Good evening, everyone. I hope you all are keeping well. Today I am continue my previous lesson, Heritage Management, page number 60. We have finished the first part, 9.1, Sources of History, their conservation and preservation. Today we will do second part, 9.2, created to organize and manage the antiquities collected by members of royal and allied families of medieval Europe. Louvre Museum, France. Louvre is in the French language, pronunciation is Louvre. In English, the pronunciation is Louvre. The Louvre Museum in Paris was established in the 18th century CE. Antiquities collected by members of the royal family was exhibited in the Louvre Museum. It included the much acclaimed painting of Mona Lisa by Leonardo da Vinci, the world renowned artist. He worked under the patronage of Francis I, the King of France in the 16th century. The collection in the Louvre Museum increased to a great extent because of the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest. Presently, the museum contains more than 3,80,000 artifacts. ये हमने टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा है इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी में ही मिल जाएंगे। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ने का कारण एक तो रीडिंग, स्पेलिंग और थर्ड मेन रीजन है कि हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं रीडिंग करने से। नहीं तो हम लोग लिखने में सिर्फ वही क्वेश्चन लिखते हैं जो टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज में हमें दिया जाता है, मगर रीडिंग करने से हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफी मिल जाता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। म्यूजियम were created to organize. Museums were created to organize and manage the antiquities collected by royal and allied families of medieval यूरोप। ये खाली इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, मेरा मतलब दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन इसलिए किया जाता है आपके बिना, हमारे स्कूल के बिना और बच्चे जो हिंदी मीडियम के वो भी ये देख सकते हैं और इसको फॉलो भी कर सकते हैं। मध्य युग मतलब मिडल एज में यूरोप के राजघरानों के लोग और संपन्न व्यक्तियों कला वस्तुओं का संग्रह करते थे। इन कला वस्तुओं के प्रबंधन की उनको जरूरत महसूस हुई, इसलिए उनके मन में संग्रहालय बनाने की इच्छा पैदा हुई। अभी हमने जो उस पढ़ा है लूवरे या लूव म्यूजियम, उसके बारे में डिफरेंट म्यूजियम है। डिफरेंट म्यूजियम में हम लोग फर्स्ट I am explaining Louvre Museum. It was established in 18th century CE मतलब common era, and antiquities collected by the royal family exhibited it. अभी इसको हम पॉइंट्स में इसलिए कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन कि पॉइंट्स में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। शॉर्ट नोट आए तो हमने पूरा लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है तो हमने एक एक पॉइंट में हमने कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, इट हैज द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोना लिसा पेंटेड बाय फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची। ये पेरिस में है। ये म्यूजियम कहाँ पे है? पेरिस में। और थर्ड पॉइंट, the collection in the Louvre Museum increased greatly because of the antiquities brought back by the Napoleon Bonaparte from his concept. इसमें हमने ये पैराग्राफ में आप देखिए कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए देखे हमने। जैसे इसमें आपसे ये भी आ सकता है, एमसीक्यू आते हैं ना, मल्टी क्वेश्चन जो आप आते हैं। When this museum was established, second, whose famous painting was there, third, who painted this painting. If we learn all these points, we can write easily these answers. अभी ये तो मैंने आपको बताया है, ये फर्स्ट जो हमने रीडिंग किया उसके बारे में बताया। अभी हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड। ये आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने आपको मेथड बता दिया कि किस टाइप के आपको आ सकते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन was established in 18th century CE. Sir Hans Sloane, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England, George II. It included several books, pictures, specimens of preserved plants, etc. Later, the collection was expanded by addition of various art objects and ancient artifacts carried by a British people from
British colonies. Presently, the museum collection comprises about 80 lakh objects. अभी ये पैराग्राफ में भी हमें देखो, जैसे पहले वाला मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी हिसाब से इसी में भी अभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको एकदम इजीली समझ में ही आ जाएगा और क्वेश्चन भी आप उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छी तरह लिख सकते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड in 18th century CE Common Era by a natural scientist Sir Hans Sloane. ये कहाँ पे है? लंदन में। म्यूजियम कहाँ पे है? लंदन में। और सेकेंड पॉइंट है, ही हैंडेड ओवर अबाउट 71,000 ऑब्जेक्ट इन हिज कलेक्शन टू द किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग का नाम क्या था? किंग जॉर्ज सेकेंड। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूडेड सेवरल बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एक्सेट्रा। बार बार मैं ये आपको एक्सप्लेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कई बार आपको सारा आता होता है, मगर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम लोग सोचते हैं ये तो पीछे क्वेश्चन दिया नहीं, मैंने लर्न ही नहीं किया। तो इसका पढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो रीडिंग तो हमें आएगी आएगी, स्पेलिंग भी पता चल जाएंगे। अभी थर्ड है, शॉर्ट नोट आए तो पूरा पैराग्राफ लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। थर्ड है ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, जो आपकी बुक में देखो पिक्चर भी दी हुई है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म बताने के लिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है। यूएसए आता है तो आपको क्या लिखना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Full name is National Museum of Natural History. There is Museum, United States of America. This Museum of Natural History, managed by the Smithsonian Institution, was established in 1846 CE. It houses more than 12 crore. 12 crore means 120 million specimens of fossils and remains of plants and animals, minerals, rocks, human fossils and artifacts. Next आ जाता है म्यूजियम इन इंडिया। The first museum in India, Indian Museum, was established by Asiatic Society of Bengal in Kolkata in 1814 CE. The second museum in India, Government Museum, was established in Chennai in 1851 CE. The National Museum was established। अभी आपको सारा बताया गया इसमें बुक में से कि कौन सा म्यूजियम कहाँ पे है और कभी इसका एस्टेब्लिश किया गया है। Was established in Delhi in 1949. There are several museums in various states of India. Usually, the big museums have their own archives and libraries. Some museums are affiliated to universities. Such museums also offer courses in museology. Following are some of the well-known institutes and universities which offer degree and diploma courses in museology. फर्स्ट है नेशनल म्यूजियम दिल्ली। सेकंड महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा। कोलकाता यूनिवर्सिटी कोलकाता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय in 1904 CE. Some influential residents of Mumbai decided to establish a museum. Visit of Prince of Wales to India in the month of November of 1905 CE. The foundation was laid of the museum building. It was decided that the name of the museum would be Prince of Wales Museum of Western India. It was renamed as Chhatrapati Shivaji Maharaj वस्तु संग्रहालय इन 1998 से। अभी हमने जो रीडिंग सारा किया है इसको मैं हम लोग हाउ वी कैन राइट, इसको हम लोग अभी तक हमने किया है ब्रिटिश म्यूजियम किया है। सेकंड हमने किया है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो भी मैंने रीडिंग किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1846 Common Era and is managed by Smithsonian Institution. It has more than 12 crore specimens. और ये कहाँ पे है? यूएसए में। यूएसए इज द शॉर्ट फॉर्म, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फुल नेम,
और ये म्यूजियम कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वाशिंगटन में। ये आपको ये छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान भी देना है और ये लर्न करने में आपको आसानी भी हो जाता है। फोर्थ हमारा है म्यूजियम इन इंडिया। ये कहाँ पे है? कोलकाता में। The first museum in India is Indian Museum, was established by Asiatic Society of Bengal in 1814 CE। CE हम लोग बोलते हैं तो फुल फॉर्म आपको मैंने पहले भी बताया था, कॉमन इरा याद रखना है आपको। फुल फॉर्म भी आ सकता है, व्हाट इज एब्रिविएशन ऑफ सीई, कॉमन इरा। द सेकंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम, वाज एस्टैब्लिश्ड। अभी देखो गवर्नमेंट का जो स्पेलिंग आप लिखते हो ना, उस पर ज्यादा जरा ध्यान देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, GOVT डाल के डॉट डाल देते हैं, मगर क्वेश्चन जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो आपको ऐसे नहीं लिखना, GOVERN, MENT। बच्चे एन बीच में नहीं लिखते। आई एम रिपीटिंग अगेन, GOVERNMENT। ये ज्यादातर बच्चों की ये मिस्टेक होती है। द सेकेंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम, वाज एस्टेब्लिश्ड। ये कभी एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है, हमने ये जो पढ़ रहे हैं ये इंडिया का पढ़ रहे हैं, इन चेन्नई in 1851 CE. The National Museum was established in Delhi 1949. Presently, there are several museums in various states of India. अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग जो म्यूजियम है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी का मतलब होता है संग्रहालय विज्ञान। अब ये कौन कौन से है? नेशनल म्यूजियम कहाँ पे है? दिल्ली में। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वडोदरा। ये आपको रॉन्ग राइट में आ सकते हैं और पीछे वाले टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन में दिए भी हुए हैं। थर्ड है कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वाराणसी में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में। शिवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद का जो वस्तु संग्रहालय है वो कभी स्टैब्लिश हुआ? वाज बिल्ट इन 19 कभी बनाया गया? वाज बिल्ट इन 1905 by some influential people in Mumbai. It was named as Prince of Wales Museum of Western India. पहले इसका नाम क्या था? Prince of Wales Museum of Western। It was named as, पहले ये नाम था, सेकंड उसको क्या किया गया बाद में इसको विट वाइल लेटर नेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन 1998 CE। ये डेट जो सब दी है आपको बहुत ध्यान से लर्न करनी है। Its building is built in Indo-Gothic style. Watch the video carefully, listen the explanation। क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे आंसर इसी में ही हैं। fill in the blanks and wrong and right पेयर भी इसी में है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।